A very good morning to respected Principal Sir, Jatin Vaidya Sir, HOD Ma'am, Poonam Faldo Ma'am, and Parul Alumni Director Varis Patel Sir, and to all my dear faculties as well as students. Today I am very happy to invite our alumni student Devashi Gandhi. She is data manager at a Siemens company at Vadodara. She was 2011 batch student. She is very sincere and silent girl, and a very big point is she is very confident. She is nature lover, and she is connected with many NGOs who helped animals and birds. So Devashi Gandhi, start your speech. Yeah, welcome to everyone. Now, all participants. First of all, we'll start with a small prayer for some positive vibes. We'll start.
Yeah. Namaste to everyone. Uh, this topic is very interesting. Woman empowerment is very interesting for the woman, but for boring for men. I shall like तो हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में सब लोग सुनते हैं पर करता कोई नहीं है एक्चुअली में. Sorry for my controversy statement लगता है, but it's my personal experience. Okay. Will start myself. दो plan है. First, I will really want to say I am engineer, and second is a wildlife photographer. मैंने engineering and wildlife photographer. It's my मेरी दो identity है. Now I will like to share my brief profile. शेयर करूंगी. मेरी डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेरी पारुल यूनिवर्सिटी से मेरी हुई थी. आई कंप्लीटेड डिप्लोमा इंजीनियर. आई रियली प्राउड to say and I am really Parul University student also connect with all Parul faculties and actually ये Parul कोच का ये एक्चुअली कल्चर रहा है कि स्टूडेंट के साथ होने के बाद भी स्टूडेंट साथ है. और मेरी एम्पावरमेंट की भी पारुल मैं ये बोल सकती हूँ कि पारुल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट स्टार्ट हुई है. Then I have self empowerment for I'm wildlife photographer first, and second is youth empowerment. For I've also worked with youth empowerment mission with youth empowerment, women and men both of it, and I'm also training, monitoring, mentoring and training. But I'm using my skills in field also. Yes. Now show uh, इतने में मेरी the village me very types of and many media. First it's a puppy wheel. I'm technical knowledge used in my passion. ये जो भी था एक्चुअली उसको पैरालाइज हो गया था. उसे मैंने अपनी टेक्निकल नॉलेज से उसको व्हील चेयर प्रोवाइड की थी और उसका आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था. एंड सेकंड एंड थर्ड इट इज द आई फाइंड द रेड बर्ड इन नियर वडोदरा. वो सारे चीज है वो जो उसमें कनेक्ट हुए थे. एंड नेक्स्ट इज also connect with one organization which it will work with enhance empathy. And I also work with any mentors से things और उन लोग मैं की बात है कि नहीं मैं लोगों की my profile appreciate and my page to and the face to appreciate my और सारी चीजें मेरी कि किया आपके
सारी चीज है। मैं और फोकस सारी अब एक्शन के टाइम काफी बोला कि अब कोई अपना एक्शन को मैंने अपने बना ये की और ऐसा होना चाहिए वह my presentation it will be visible. Sorry for disturbance from network. Yeah, professions and को हम पैशन को हम प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, कुछ चीज व्हाट इज अ प्रोफेशन नाउ, कुछ प्रोफेशन में प्रॉफिट भी सकते प्रोफेशन मार्क्स हम हमारा टॉप में पड़ा तो हम सेल्स आते हैं तो लाइक वो प्रोफेशन उस रीजन फॉर नेक्स्ट एग्जांपल इज भी हमारे कंप्यूटर फील्ड से ऐसे सब्जेक्ट है वो पसंद नहीं है कुछ सब्जेक्ट फिर में पढ़ता है फॉर एग्जाम पास के लिए. इट्स कॉल्ड अ प्रोफेशन. व्हाट इज पैशन?
आपको आपको अच्छा लगता है इसीलिए करते हो, उस चीज पैसे में जरूरत भी नहीं एक्चुअली में। Passion can be converted to profession. For live example, our institute is वो मैं थी तरन, एक तरन को बास्केट का पैशन, बट शी yeah now for the network issues. Okay, now what is empowerment mean? भी कुछ empowerment empowerment करते, but actual क्या है? Empowerment is defined as the process of becoming a strong and more confident, especially in controlling one's life and claiming a one's right. हम एक्चुअली में सब इक्वल है, हमारे राइट के, हमारे हक के लिए मांगते हैं, वो हमारा एक्ट में हक है, उसके लिए हम लड़ते हैं। इट्स एम्पावरमेंट। हम सब इक्वल्स है, बट हमें सबको, मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते काफी जगह। There are three types of empowerment to get power authority. For example, कोई मैनेजर बनी किसी कंपनी में, to power or authority. That's and second is getting power can be from legal authorities or from societies. कुछ लोग चुनकर उनको किसी अच्छी पोजीशंस में लाते हैं, फॉर लाइक इन पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि हम खुद सिलेक्ट के लेडी को हम लाए, लाइक फॉर इंदिरा गांधी, जो चुनकर ऊपर आई थी, लोगों ने चुनकर ऊपर, उसे कुछ लीगल अथॉरिटीज फॉर सोसाइटीज, या एंड इट कैन बी सेल्फ जनरेटिंग खुद आगे आकर सोसाइटी अपनी से कुछ इतना अच्छा कुछ कर, उसे कुछ ना वो किया वो नहीं, इट इट्स अ सेल्फ जनरेटिंग। से एम्पावरमेंट मेन क्वेश्चन को मैन की बात करता, अभी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों? आई शॉर्ट एनालिसिस, जो मुझे लगा, मैंने शॉर्ट एनालिसिस किया इस बिहाइंड कि व्हाई ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, नॉट मैन एम्पावरमेंट।
So its first reason, it is scientifically expect few biologically difference women pose for same brain power, and in some more than. Hence, the resource is lying under utilized, which is a crime. बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है ही, मैन एंड वुमेन से बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है, बट ब्रेन एंड द सेम ब्रेन पावर, बट हमें जो ब्रेन पावर एक्चुअली सबका है, उसमें डिफरेंस नहीं है, वो नहीं है। तो वुमन एम्पावरमेंट में किसी के ब्रेन और किसी के टैलेंट को यूटिलाइज नहीं किया जाता, और वो अपने टैलेंट को अधूरा ही रह जाता है, वो एक क्राइम है एक्चुअली में। समाज ने काफी कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है कि वुमेन्स के टैलेंट को, फॉर एग्जांपल सोचे कि कहीं कंपनीज में कोई ऐसी बड़ी सीईओ की पोजीशंस में वुमेन्स कम होगी, फॉर ओनली वन रीजन कि वो लड़की है तो उसको आगे नहीं बढ़, उसको इस पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, उसको टैलेंट को यूज नहीं करता है वो एक्चुअली, दिस इट कांट यूज इट यूज विच इट विल बी क्राइम्ड। The second is a course of years, women who were considered more near to nature were more efficient in handling the natural resources and were playing important role in income generation in family. Due to this reason, not a very worthily and mention here it was constantly sidelined. पहले खेत में काम करना हो या जंगलों में कहीं कुछ लाना हो, या सभी जगह नेचर से कनेक्टेड ज्यादातर वुमेन्स रही हुई है। वो जितना एफिशिएंटली और जितना हार्ड वर्कली काम कर सकती थी, वो इतने मैन पहले और अभी में काफी कुछ डिफरेंस है कि नेचर के पास इतना ज्यादा वो रही हुई। थर्ड इज इन दिस डेज ऑफ कॉम्पिटिशंस, it is always better that the women who are a resource in a themselves be utilized, not only for a family but for a nation, for enhanced output and GDP. आजकल काफी सुनते हैं कि लड़कियां काम करती है, वाइफ काम करती है, तो काम करने की इतनी कंपटीशन एक्चुअली में इतनी बढ़ गई है। और अब थोड़ा फॉर अ जोक अपार्ट कि एक इंसान से मतलब एक आदमी से घर नहीं चला सकते, तो इसीलिए सेकंड रीजन इसके लिए भी है कि वुमेन्स को काम करना भी पड़ता है, ना कि सिर्फ घर पे रहना, बच्चे वो हैंडलिंग करना, बट अपने टैलेंट को यूज कर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करती है और फाइनेंशियली हेल्पफुल करती है। इवन अपने फैमिली को तो है, बट एक्चुअली फॉर नेशन हमारे जीडीपी में भी हेल्प होती है, उसको में एक पार्ट है। नाउ we are outstanding and empowered women in India. काफी हमारे इवन रिलीजन्स में भी देखो तो जो भी देवी है उनको एक शक्ति का पार्ट दिया गया है, शक्ति है, फाइनेंशियल के लक्ष्मी देवी है, तो उसमें भी हमें देवी का हमें पार्ट दिया गया है। नाउ हमारे इंडिया में ऐसी काफी लेडीज है जो इतनी फेम और इतनी मुसीबत से वो आगे आई है। उसके थोड़े हम देखेंगे कि फर्स्ट हम देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, रूपमती बाई। वो 400 साल पहले की, कि जब इतना एम्पावरमेंट था भी नहीं, उनको इतने रिस्ट्रिक्शंस थे, फिर भी वो इतने आगे आए। फिर सरोजिनी नायडू इज लता मंगेशकर है, फिर इंदिरा गांधी, निर्मला देवी, सुष्मिता सेन, कल्पना चावला, ये हर एक आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक फील्ड में लेडी ने अपना कुछ ना कुछ दिया है। लाइक हम लक्ष्मीबाई की बात करें तो वॉर में बोल सकते हैं कि उसने इतना वो
आगे क्या है, लता मंगेशकर को बोलेंगे तो फिल्म इंडस्ट्रीज और म्यूजिक लाइन में अभी भी उनको कॉम्पीट करने वाला कोई भी नहीं आया। वो लता मंगेशकर की, इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स में एज अ बेस्ट, अभी भी एज अ बेस्ट लेडी हम उसको उनको बोल सकते हैं, इंदिरा गांधी भी। फाइनेंशियल फाइनेंशियल में है तो निर्मला सीतारामन को, जो हम के फाइनेंशियल में वो सीतारामन है। फिर सुष्मिता स्वराज जो फॉरेन मिनिस्टर में थी, और कल्पना चावला जो स्पेस, मतलब हर एक फील्ड में है, स्पेस में पहुंच गई है हमारी कल्पना चावला। ये तो कुछ ऐसी लेडीज है जो काफी फेमस हो गई है। बट कुछ ऐसी लेडीज है जो फेमस फेमस तो उनको इतना फेम नहीं मिला, बट उनकी अपनी फील्ड में भी काफी है। ये गुंजन सक्सेना की बात करें तो वो कारगिल में सिर्फ अकेली एक लेडी थी जो कारगिल वॉर में वो उन्होंने फाइट किया था उन्होंने। और ये सिंधु ताई जैसी लड़की है, जो सिंधु ताई है जो अनाथ, अपने पास कुछ ना होकर भी इतने अनाथ बच्चों को किया है। तो एक शॉर्ट एग्जाम्पल है हम, कि मैंने इन सब सारी लोगों से मैंने काफी मोटिवेशन मिला है। किरण किरण बेदी जो इस पुलिस फर्स्ट पुलिस इंस्पेक्टर रही थी, वो किरण बेदी। मैंने अपनी लाइफ में इन सभी लोगों से, इन सब की बायोग्राफी पढ़ के अपनी लाइफ में काफी मोटिवेशन मिला, कि जो मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करती रही, और अभी भी मेरा कंटिन्यूस है। तो हम नेक्स्ट करेंगे कि हाउ टू एम्पावर योर सेल्फ। हम एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर ली, बट हमें खुद को एम्पावरमेंट कैसे करना है, हम खुद को एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस, सेल्फ एम्पावरमेंट फर्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन इट्स बी मस्ट मस्ट एंड मस्ट। हम ऐसा काफी काफी गर्ल्स ऐसे सोचती है कि ठीक है चलो डिप्लोमा कर लिया, हम डिग्री करेंगे नहीं करेंगे, या कुछ हम बोले तो एनआरआई हस्बैंड मिल गए हमें तो हमें अब आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग थिंग। हम जितना पढ़ सके उतना उतना डेफिनेटली पढ़ना, क्योंकि बिकॉज इवन फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई, या कुछ हम पढ़े लिखे होंगे, हमें इतना नॉलेज होगा, तो हम अपनी फैमिली को भी इतना हेल्पफुल कर सकते हैं, अपनी सोसाइटीज को भी इतना हेल्पफुल हो सकते हैं। इवन एनी इमरजेंसी में हम स्मार्टली वर्क, हम एजुकेशन होगा फर्स्ट, हमारा बेस एजुकेशन, वो हमारा बेस है। हम वो होगा तो हम अच्छे से अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटीज को हेल्प कर पाएंगे। ये तो हम, अच्छा है कि हमें सिटी में हम रहे तो हमें हमें एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि हमें मिल जाता है। बट मैंने काफी जंगलों में गई हूँ तो मैंने वहां पर देखा है एक्चुअली में कि काफी लेडीज के पास इतना टैलेंट रहता है, फिर भी वो इतना अपने आप को एम्पावर नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ द नॉलेज लैक, कि उनका एजुकेशन लैक, वो उनके पास एजुकेशन इतना कम्प्लीटली ना होने की वजह से काफी लोग उनको चीट करके चले जाते हैं। उनके पास इतना टैलेंट है, यूज करके एम्ब्रॉयडरी वर्क्स करती है, इतना टैलेंट है उनके पास, बट उनको कैसे सेल करना है, उनको कैसे उनको इतना मार्केट मिलना चाहिए, तो काफी वो नहीं करते बिकॉज ऑफ एजुकेशन उनके पास नहीं है, उसके लिए उनको ये प्रॉब्लम होता है। नाउ सेकंड इज कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ठीक है, हमने स्टडी कर लिया, फिर सब लोग सोचते हैं कि मैं गुजरात से बड़ौदा की हूँ तो बड़ौदा के बाहर तो मैं कहीं जॉब नहीं करूंगी, कि बड़ौदा के बाहर मैं कुछ ये नहीं करूंगी। इवन स्टडी के लिए भी सब मोस्टली सोचते हैं कि बड़ौदा के, या मैं गुजरात में ही स्टडी करूंगी, या उसके नहीं कर सकती। तो फर्स्ट, और जॉब का है तो जॉब का इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद लोग के नहीं, मैं अहमदाबाद तो मैं नहीं जा सकती, बैंगलोर तो मैं नहीं जा सकती, बड़ौदा में ही फाइन करूँ।
तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाहर निकले कि, और हमारा एक पैशन तो ऐसा ऐसा रखना ही चाहिए अपना एक। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो साथ किया ही, उसके साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ मैंने अपना पैशन भी कंटिन्यू रखा। मैं फोटोग्राफी के लिए जाती थी, तो वो चीज फोटोग्राफी के लिए गई तो मुझे काफी नए पीपल्स मिले, उससे कम्युनिकेशन करना, उससे काफी चीज सीखना, एक ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा इम्प्रूव होता है कि लोगों से जितना मिलते हो, जितना हम बाहर जाते हैं। लाइक पारुल यूनिवर्सिटी में तो काफी कल्चर इवेंट्स और काफी वो इवेंट्स होती, तो पार्टिसिपेट्स होना चाहिए। मैंने भी काफी फोटोग्राफी इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट्स किया है उसमें, तो उसका स्टोरी तो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट फर्स्ट पार्टिसिपेट करो। सिर्फ कॉलेज में आए हैं तो हमें स्टडी करना है, एक ही माइंडसेट के स्टडी के अलावा कुछ नहीं, तो आप एक कंफर्ट जोन में एक्चुअली में, उससे बाहर भी है कि हम दूसरी कॉलेज में हम एक्सपर्ट, अभी तो ऑनलाइन हो गए, बट पहले जब फिजिकल था तब हम उसके कॉलेज में एक्सपर्ट लेक्चर अटेंड करने जाए, या कोई कोई और पैशन है आपका, तो वो कंटिन्यू रखें। यस, नाउ थर्ड इज अ बिलीव इन योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव इन योर सेल्फ, आई कैन डू इट। कुछ लाइफ में लाइक मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था फोटोग्राफी का, मेरे मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि मैंने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी का, तो सब लोग बोलते थे कि एक लड़की होके, क्योंकि इस फील्ड में 2011-12 की बात है, इस फील्ड में मोस्टली गर्ल्स कम थी एक्चुअली में। तो फैमिली का प्रेशर, मतलब फैमिली के, तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या है, ये गलत है, ये है, वो सब लोग सब कुछ आपको नए नए एडवाइस देंगे, सब कुछ वो करेंगे, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट फर्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ। आप क्या कर सकते हो, आपका राइट वे है, एडवाइस सबके लो, बट आपका राइट वे क्या है, आपको खुद के अंदर विश्वास है। कोई आपको ये बोलकर चला गया कि यार तुम ये बिजनेस स्टार्टअप तो नहीं कर सकते अभी, तो इसमें तो फाइनेंशियली ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट आपको ट्रस्ट है कि मेरा पूरा बैकअप है, तो यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। यस, नाउ फोर्थ इज रेडी फॉर अ फेस रेजिस्टेंस। गर्ल्स के लिए मेन सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी हम करेंगे लाइफ में, लाइक फॉर मैं ये सारी चीज मेरे खुद के एग्जाम्पल से बताऊं, क्योंकि एक्चुअली में ये सारी चीज मैंने फेस की है कि कॉलेज में फोटोग्राफी के लिए जाना रहता है, तो फोटोग्राफी के लिए मोस्टली नाइट ट्रैवलिंग ज्यादा, और मेल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा घूमना पड़ता रहता था, क्योंकि इस फील्ड में उसके साथ ज्यादा कनेक्शन रहना पड़ता था। तो फैमिलीज, सोसाइटीज बोलेंगे कि आपकी लड़की तो इतनी बजे देर देर तक घूमती है, बट उसको कैसे करना है, फैमिलीज को अपने पैशंस को कैसे समझा के रखना है, क्या करना है फैमिली को कैसे, वो सारी चीजें हैं। तो सब लोग बोलने आएंगे, अपोज करने आएंगे कि आपकी बेटी ये क्या कर रही है, बट इसको सबको फेस करना और अपने माइंड को स्टेबल रखना, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। कि कुछ भी अलग करोगे तो कोई ना कोई तो बोलेगा ही, कोई ना कोई तो चीज हमारे सामने आएगी, बट उसको सबसे स्ट्रांगली हमें सारी चीज हैंडल करनी है। नाउ एज सिक्स थिंग्स, ये कि लर्न वन सेल्फ डिफेंस टेक्निक। यस, मैं अब तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी आप कराटे क्लासेस ज्वाइन करो या जूडो क्लासेस ज्वाइन करो, ये सारी चीज तो मैं नहीं बोलूंगी, बट सिर्फ ये तो एक या दो टेक्निक्स जो सेल्फ डिफेंस की है, वो तो हमें एक्चुअल में करनी चाहिए, या एक्चुअल में आनी ही चाहिए। यूट्यूब से काफी जगह से हमें मिल जाएगी कि हम कहीं पर है, तो हमें इवन ऑफिस में है, या कहीं हमारे कहीं और जगह पर है, कुछ ऐसा बिहेव होता है, तो कम से कम हम उसको ऐसे एक एक जोर से तमाच दे सके, इतना तो हमारे में स्ट्रांग और वो एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसका ऐसा ना लगे कि हाथ छू के चला गया।
तो उसके लिए डेली 5 to 10 मिनट्स हमें अपने बॉडी पार्ट्स को इतने स्ट्रांगली हमें रखना चाहिए कि कोई थप्पड़ मारे तो ऐसा ना लगना चाहिए कि ये तो हाथ छू के चला गया एक्चुअली में। तो ये चीज है कि लर्न सेल्फ डिफेंस टेक्निक, एक दो चीज टेक्निक्स तो हमें सीखनी ही चाहिए जो हमें काम आएगी आगे और हमें जरूरी भी है आज में। और नाउ sixth is identify your identify your passion and follow it. अपने पैशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसको पैशन को हम फॉलो कैसे करेंगे? लाइक हम कि काफी सब्जेक्ट्स है हमारे में कि हम लाइक मैं अभी कंप्यूटर फील्ड की बात करूँ तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है कि एक्सेल लाइक मैं फॉर एग्जांपल मेरे से बताऊं कि एक्सेल ऐसे कॉमनली सब लोग कहते हैं कि एक्सेल है तो क्या उसमें इतने क्या सीखना जैसा क्या है, बट एक्चुअल में जब आप जॉब करोगे या उसमें जाओगे तो एक्सेल में इतना सब कुछ है, बट आपको फोकस आपको उसमें से पैशन फाइंड करना है, पैशन को प्रोफेशन जैसे बनाना है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये एक्सेल की बात करते तो एक्सेल में लाइक हम इतना कुछ एक्सपर्ट बन गए उस रिलेटेड, हम आगे आगे जाएंगे जॉब करेंगे तो उसमें एक्सेल में क्या क्या है वो पता चला, तो हम उससे एक्सपर्ट लेक्चर्स भी दे सकते हैं जो अभी एक्चुअली में अभी जो मैं कॉर्पोरेट लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि काफी कुछ चीजें नहीं भी आती, तो कंपनी जैसे ऑर्गेनाइज करती ये सारी चीज, तो हम एज ए उसमें एक्सपर्ट लेक्चर भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो, फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कि ये एक्चुअली में हमारा पैशन है कि हम किसी को देखकर या किसी को ऐसे करके हम कर रहे हैं। लाइफ में हमारा खुद का एक पैशन होना वो भी बहुत जरूरी है। वो कैसे मैं आपको फॉर नेक्स्ट बताऊंगी, बट अपना फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर पैशन वन, देन नेक्स्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप लोग सोचोगे कि इतने यंग होकर मेडिटेशन और ध्यान की बात कैसे करती है ये, बट लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ रीजन से फ्रस्ट्रेशन आता है लाइफ में। हम जैसे अभी तो आप कॉलेजेस में हो तो कॉलेजेस में तो इट्स ओके, कुछ इतना नहीं रहता, बट कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आप जॉब करते हो, फिर फैमिली को हैंडल करना और ये सारी चीज, हाँ कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन लेवल काफी अप हो जाता है। हाँ वो बात अलग है कि सुसाइड ज्यादा मैन लोग करते हैं, वुमेन्स नहीं करती, बिकॉज ऑफ वुमेन्स का मोरल और मेंटल कैपेसिटी काफी स्ट्रांग रहता है। बट मेडिटेशन एक्चुअल में बहुत जरूरी है फॉर मेंटल हेल्थ। कभी भी डिप्रेशन वाली चीज इससे प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करनी है। और ऐसा तो है ना कि मैं आपको लोगों को बोलूँ घंटों तक, सिर्फ सुबह में 10-15 मिनट मेडिटेशन करो। लाइफ में फिर ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि लाइफ में इवन और काफी सिचुएशंस रहती है, बट उसको कैसे मेंटली स्ट्रांग होकर उसको हैंडल करना, तो वो बहुत जरूरी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू डू मेडिटेशन फॉर 5 या 10 मिनट्स, बट डेली प्रैक्टिस में आगे तो हो जाएगा। यस, नाउ आई विल शेयर माई लाइफ चैलेंजेस कि मेरी लाइफ और मेरे पैशन में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या एनकाउंटर्स हुए, क्या मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया एक्चुअली में, कि एक्चुअल में ये रियल है कि मैंने क्या क्या फेस किया। तो आई विल शेयर यू ऑल। फर्स्ट आई विल शेयर ऑल टू कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन। हाउ टू आइडेंटिफाई माई पैशन, मैंने अपने पैशन को कैसे आइडेंटिफाई किया फर्स्ट। तो फर्स्ट मुझे पहले जब से बहुत छोटी थी तब सबका कैमरा लेकर मैं घूमती रहती थी, बट इतना नहीं था कि मैं उसको किसी का भी कैमरा ले तो मैं फोटो क्लिक कर लेती थी। उसकी मुझे काफी डांट भी पड़ी है कि पहले तो कैमराज वाले रोल वाले कैमराज आते थे,
तो बट वो मुझे पहले से शौक था। देन मेरे पापा ने 2011 में मुझे पॉइंट एंड शूट कैमरा लेकर दिया था, और उसी टाइम से मेरा कॉलेज में मेरा डिप्लोमा की शुरुआत थी। फर्स्ट नए नए थे, तो मुझे एक्चुअली पारुल कॉलेज से, मैं ऐसा बोलूँगी तो मुझे मेरे फोटोग्राफी लाइन में काफ़ी एम्पावर्ड हुई हूँ मैं उस चीज़ से। जैसे कि पारुल में ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी रहती थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसी फोटोग्राफी इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम था, इतना कुछ आइडियाज नहीं था, तो ये नहीं बोलूंगी कि मैं फर्स्ट ईयर कुछ प्राइज मिला। बट पारुल वहीं कॉलेज के फैकल्टीज ने मुझे एमएस यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी इवेंट में पार्ट करने के लिए बोला। तो आई पार्ट ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पर सिर्फ मैं अकेली लड़की थी एक्चुअली में ये फोटोग्राफी पर्टिकुलर इवेंट में। तो देखा कि काफी मतलब वो मेरे लिए काफी नया बोलूंगी तो नया ही एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पर फोटोग्राफी इवेंट सब कुछ कंप्लीट हुआ ये वहाँ से, एंड देन उस टाइम पे मैंने सेकंड प्राइज जीता था। और फिर और आगे का चांस मिला ये धीरूभाई कॉलेज फ्रॉम गांधीनगर में। वहाँ पर वो मैं फर्स्ट, बड़ौदा में तो ठीक है, बट मैं गांधीनगर गई यहाँ से फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रैवलिंग करके फॉर ऐसे फोटोग्राफी के लिए। वो भी मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस एंड आउटस्टैंडिंग मेरा परफॉर्मेंस रहा। और उससे बाद वहाँ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते लेते मैं फोटोग्राफीज के क्लब में जुड़ी कि कैसे कैसे फोटोग्राफर्स है और कैसे वर्क्स करते हैं एक्चुअली में। तो ये मैंने नेचुरल फोटोग्राफी का ज्वाइनिंग ऐसा था, बट मुझे एम्पावरमेंट काफ़ी मिला ये पारुल कॉलेज से और उसके फैकल्टीज से। एंड सेकंड था चैलेंजेस। अब फोटोग्राफी कर रहे हैं तो एज ए वुमन काफ़ी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। तो फर्स्ट ये था कि फैमिली सपोर्ट, मुझे फुल फैमिली सपोर्ट मिला। फुल काफ़ी कुछ सोसाइटीज वाले मेरी मॉम को मैंने कॉन्फिडेंट में लिया। फर्स्ट चीज़ कि कुछ भी चीज़ करो, आप कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फैमिली को कॉन्फिडेंट में लो कि मेरी बच्ची है जो सही वर्क कर रही है, सही काम कर रही है, वो सारी चीज़। तो मेरे मम्मी को काफ़ी लोग सुनाते भी थे, बट उसको कैसे आंसर करना है वो पता चल रहा था, बिकॉज मैंने उसको मैं जहाँ जहाँ जंगलों में गई थी तो उसको मैंने एक दो बार मैं लेकर गई कि मैं एक्चुअल में किस तरह से वर्क करती हूँ, किस तरह से मेरा वर्क है। वहां पर जंगल में जाती हूँ तो किस तरह से लोगों से डील करना रहता है, वहाँ के ट्राइबल्स एरिया में जाके ट्राइबल्स पीपल्स के साथ कैसे डील करना रहता है। वो सारी चीजें मैंने मेरे पेरेंट्स को रियलाइज करवाई कि ये ऐसा ऐसा वर्क करिए। तो लोग सामने सब जो भी बोलने हैं तो उसको क्या आंसर करना है तो मेरे पेरेंट्स को पता चल रहा है। मेरी मम्मी को मैंने कॉन्फिडेंट किया पहले इन सारी चीज में फर्स्ट ऑफ ऑल, और नेवर बीटेड माय पेरेंट्स ट्रस्ट। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही मैंने उत्तराखंड का फर्स्ट टाइम मैंने सोलो ट्रैवलिंग किया था उत्तराखंड में। तो अब जाना है तो एक्चुअली पेरेंट्स का ट्रस्ट इज मस्ट। ये चीज कभी मत करना कि आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट छोड़ो। अपने पैशन रियल है और अपने पैशन को फॉलो करना है तो फिर ये चीज कभी मत करना, अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट कभी मत ब्रेक करना। नाउ नेक्स्ट कि वाइल्ड फोटोग्राफी डिमांड्स अ प्रैक्टिस एंड also determinations. At times, I had to stay the same position for hours to take a one shot. Yes, कि मैंने आपको पहले बोला ना कि फ्रस्ट्रेशन कब कहाँ आता है, तो इवन फोटोग्राफी में भी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम एक शॉट के लिए कितनी बार एक जगह पर घंटों तक बैठे रहते हैं।
एक्चुअली नेचर ऑलवेज गिव अ सरप्राइज। हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलता है, पर कभी शॉक भी मिल जाता है। लाइक हम कितने टाइम तक, कितने घंटों तक हम फोटोग्राफी के लिए बैठते हैं, बट कभी शॉर्ट्स हमें नहीं भी मिलते कि इतने बैठे तब फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार इतने घंटे हमारे वेस्ट हो गए। बट उसी टाइम पे वो करना है कि एक पोजीशन पे, एक सिंगल शॉट पे, और लेडी एज अ वुमन, आप लोगों को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या, पर उसको बीट करके ये सारी चीजें की है। More times now, most of times the idle times in the last night, so traveling during the nights, that do without of any food and water, and even any water. काफी बार ऐसा होगा कि काफी बार मेरे हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि फोटोग्राफी के लिए कोई कोई टाइम पीरियड नहीं रहता। ओके, शाम को ये जगह पर है तो हम फोटोग्राफी क्लिक करके रिटर्न होंगे। बट कभी कभी हमें, मैंने बोला कि नेचर ऑलवेज गिव अ सरप्राइज, तो कुछ ऐसी चीज मिल गई। हम फॉर मैं मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस शेयर करूं कि हम ये छोटा उदयपुर साइड हम फोटोग्राफी के लिए गए थे। तो वहां पर ओके, लेपर्ड की फोटो क्लिक कर दी, बट उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि उसके साथ बेबीज भी है। तो उसके फोटोग्राफ्स, वो बेबीज अपने केव से बाहर आए, उसके उसके फोटोग्राफ लेने के लिए हम थ्री थ्री आवर्स हमने वेट किया। मतलब रात के 2-3 बज गए थे। अब ट्राइबल्स एरिया में मोस्टली क्या रहता है कि वहां पर 6 या 9 बजे तो लोग सो जाते हैं एक्चुअली में। तो हम रात के इतने टाइम तो विदाउट एनी फूड एंड वाटर हम लोग ने पूरा वो सरवाइव किया था उस टाइम पे। तो ये सारी लाइफ चैलेंजेस, वो चीज भी आती है अपनी लाइफ में कि आप कोई भी पैशन फॉलो करो, रूल्स ऑलमोस्ट सबके सेम होता है, बट वो उस चीज को करने के लिए। तो ये सारे लाइफ के मेरे चैलेंजेस थे। फिर keeping mind cool during frustrations when you waste hours and you do not get a single shot. At the same time, not getting a right recognitions and forget about the money. आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो ये चीज तो भूल ही जाओ कि आप इससे आप कुछ पैसे कमा सकते हो या कुछ ये चीज कर सकते हो। बट या कभी कभी राइट रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता। मैंने जैसे आपको फर्स्ट बोला कि एक लड़की है तो उसको प्रमोशंस मिलने में काफी दिक्कतें आती है लाइफ में। अभी मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर रही हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ये भी आती है। बट आप एक पैशन रखते हो ना, उसके बेनिफिट्स भी काफी है। लाइक मैं अभी जॉब कर रही हूँ, वहां पर सब लोग को ये लगता है कि एक एज अ वुमन ये भी प्राउड फील वहां पर सबको एक्चुअली में ये होता है जॉब में, जहाँ मैं अभी जहाँ सीमेंस में हूँ वहां पर, कि एज अ वुमन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी, एंड आई एम ऑल्सो वर्क वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू भी। मैं लेपर्ड रेस्क्यू और स्लॉथ बेर रेस्क्यू भी कर रही हूँ। तो ये सारी चीज भी उन लोगों को रखती है कि सब लोगों को मोस्टली ये होता है कि जॉब शुरू हो जाने से पैशन भूल जाते हैं। बट मेरा अभी तक कंटिन्यू है। अपना पैशन इतना स्ट्रांगली रखो कि हम उसमें कर सके। कोई आप बोल दे कि नहीं अब नहीं जाना है, मैंने जॉब के साथ ये सारी चीजें भी कंटिन्यू रखी है। तो इन सारी चीजें में काफी कुछ बोलेंगे तब हमारा माइंड फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, इसीलिए बोल रही हूँ मेडिटेशन इज मस्ट। नाउ एज फेयर एज हैंडलिंग मेल इन concern, I always used to project a strong stance and was a equipped for all. ये चीज बहुत जरूरी है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या कॉलेज में हो या प्रोजेक्ट में हो या फ्रेंड्स के साथ हो, हमेशा फ्रेंडली बिहेवियर वो जरूरी है। पर वो इतना भी हमारे पर हावी नहीं होना चाहिए कि कोई भी हमारा यूज करके चला जाए। हमेशा हमारा जो फेस रीडिंग है इतना स्ट्रांग तो होना ही चाहिए कि सामने वाला एक बार डर भी जाए कि इससे पंगा लेना या इससे वो करना तो ठीक नहीं है।
हाँ, फ्रेंडली नेचर ऑब्वियसली है, बट इतना भी फ्रेंडली मत रखना कि कोई भी हमारा यूज ले ले या हमारा यूज कर ले। हमने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट वर्क किया है तो वो अपना लोगो मार्क करके अपने खुद प्रेजेंट करें। हमें इतना स्मार्टली और इतने अच्छे से हमें बिहेव और वो रहना चाहिए। और इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो हमेशा हमारा फेस और रीडिंग होना चाहिए। जैसे हम कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो वहीं पर भी होना चाहिए कि कोई हमारा गलत ना यूज कर ले। या नाउ आई विल, ये काफी कुछ बात हो गई। नाउ कि मैसेज फॉर ऑल फीमेल पार्टिसिपेट्स कि नेवर कंसिडर टू inferior टू एनीबॉडी इन लाइफ। सबको चैलेंजेस मिलते हैं, सबको चैलेंजेस मिलते हैं, पर नेवर कंसिडर inferior एनीबॉडी इन लाइफ दैट, एंड डोंट गिव अप टू। कभी भी गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए। फैमिली के साथ है, आपको स्टडी के बाद काफी फैमिली प्रेशर आता है, शादी कर लो शादी कर लो, बट उसके लिए स्टैंड लेना इट्स मस्ट। कि फर्स्ट करियर हम इतना इतना पढ़े हैं तो डेफिनेटली वो तो रखना माइंड में कि हम जॉब करें। हम एक बार तो जॉब करें, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो अदर्स थिंग्स है, बट इतना तो रखना कि हम अपने करियर में वो रखें। गिव योरसेल्फ ऑन ट्राई इन वन पैशन और प्रोफेशन। वो चीज है तो कि एक पैशन और प्रोफेशन, लाइक मैंने जो चीज बताई वही कि स्टडी के बाद शादी कर लेना और लाइफ सेटल, वो एक्चुअली कोई लाइफ नहीं है। एक्चुअली में एक पैशन है जो उसे कंटिन्यू रखना। स्टडी भी इतना इम्पोर्टेंट, बट स्टडी के साथ साथ, और पारुल में तो इतने अपॉर्चुनिटीज काफी मिल रहे हैं। मेरी फोटोग्राफी की इतनी जर्नी तो मैं तो क्रेडिट दूंगी कि उससे हुई थी ज्यादातर, कि मैंने कॉम्पिटिशन्स में इतने पार्ट्स लिए और उसको कंटिन्यू रखा, और जॉब में भी अभी कंटिन्यू हूँ 1.5 ईयर से। बट वहीं से भी मेरा पैशन कंटिन्यू है, और उस पैशन में मैं ज्यादा इम्प्रूवमेंट, और मुझे मीडिया थ्रू भी इतना माइलेज मुझे काफी मिला है, राइट। तो वो सारी चीज को हम एक शादी के उसमें आकर ब्लॉक कर देना, इट्स नॉट राइट वे। एंड हैंडली रेजिस्टेंट बोल्डली एंड स्मार्टली। हमेशा कोई भी चीज कि हम लड़की है तो नहीं कर सकते, ये कहकर कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते। हम जो कर सकते हैं वो काफी मेंस नहीं कर सकते। तो ये बोलूंगी कि कोई भी सिचुएशंस हो उसको बोल्डली एंड स्मार्टली हैंडल करना। या नाउ आई विल स्टॉप माय स्पीच एंड now anybody have any questions to ask me? Thank you. You have any questions? Hello? Thank you. Very good, Devarshi, to encourage Yeah. the girls to reach their destination, right? And also give the knowledge about to identify the passion. Yeah. Thank you so much, Devarshi. Thank you, ma'am. Thank you. And thank you. Give a great opportunity for me. लाइक फिर से वो कॉलेज के दिन मैम आपके साथ वो सब लोग आज मैं याद कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। Yes.
a small contribution to Parul University. I feel that. Yes, yes. It is very nice session, really. Yeah, thank you so much. Okay, so Yeah, here we conclude our session. yeah. Anyone have any question, मैम? कोई question किसी को कोई हो तो? Uh, no, no, Devarshi. There is no question. Okay. Okay.